Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor PBD ITM Lucknow. In this lecture series we are studying about Introduction to Solid Mechanics. Today's lecture we will deal or we will study about analysis of uniformly tapering circular rod, deformation of a bar due to its self weight, deformation of a conical shape bar due to its self weight. So, let us start today's lecture. In the previous lecture we have analyzed the different conditions in which a body is subjected to a stress, such as body having varying cross section or body formed due to made up of composite section like different types of material. In this lecture series, maybe the composition of material that the body is composed is same or may differ, but in this lecture or in this topic we will study a different types of variation of cross section. Like this, we have a circular rod in which the diameter at one end is said to be d1 and diameter at other end is said to be d2. Like it means that d1 is not equal to d2, d1 is not equal to d2, due to which it form a tapered shape. Tapered shape means there is some decrease in cross section as we move towards or as we traverse through its length. Okay. In yesterday class we have a study about what is prismatic section. Prismatic section means a type of section in which there is no variation in cross section throughout its length, but here we can see this is a non-prismatic section. In one type of non-prismatic section we have already discussed about a section of varying cross section in which area is varying, but in which area is not only varying after a particular length, but it's keep varying, like there is a change in slope. Okay, if we need to find a slope of here and slope of here, then there will be different type of slope present in this body. So, let us start the analysis. So, here we have a section of rod having d1 diameter at this end, say A end, and d2 diameter at B end. Okay. The member is subjected to an axial load of P kilonewton. Member is subjected to an axial load of P kilonewton. Okay. Then length of this bar is L and Young's modulus of elasticity is E. Okay. So, if we have to analyze this type of section, we have to take out a section from it, a thin strip. So, this is a strip we are taking out and say the length of this strip is dx, length of this strip is dx. Then what is the diameter at this section? At d8, what is the diameter of ds section? What is the diameter? So, to calculate the diameter, we have a formula, or we can deduce the diameter from this, that dx is equal to d1 minus d2 upon L into x. This is the formula from where we have to find the diameter of ds section. Okay. So, as we know the elongation can be given as elongation of any bar subjected to an axial load can be given easily calculated as a from formula PL upon AE. So, here the section is subjected to a PL load, length of the section is dx, E is the same, then only varying is this area, and as we know the cross section, shape of cross section is circular cross section, hence area is said to be AX is the area of this particular strip, area of cross section of this strip. Okay, this strip. So, AX is said to be pi by 4 of ds square, AS is said to be pi by 4 of dx square. So, if we use Ax over here, if we use Ax over here, then delta is said to be delta dx, deformation of this strip, this strip when this strip is subjected to a load axial load of P kilonewton, when this strip is subjected to an axial load of P kilonewton. Okay. तो जब अगर हमें ये एरिया निकल जाए, अगर इस पर्टिकुलर इस स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन निकल जाए, तो ऐसे ये पूरा का पूरा स्ट्रिप इस पूरे लेंथ के अलॉन्ग मूव करवा के या इंटीग्रेट करके टोटल सम करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल डिफॉर्मेशन इस बॉडी का कितना हो रहा है. तो हमें पता है कि इस स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है. तो इस स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. और मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें डेल्टा डी एक्स निकालना हो, then we have to use delta dx is equal to delta dx. It means elongation of dx strip is said to be P into length of this strip is dx. What is the area of this strip? As we discussed, area of this strip is said to be pi by 4 into capital ds square, pi by 4 into capital ds square into E. As material is same, hence Young's modulus of elasticity will be same. What is the value of dx? The capital dx is equal to d1 minus d2 upon L
into dx. From this we can calculate the value of dx. So, as we know, this is the elongation of this strip when subjected to a p load. But if we have to find total elongation, then we need to integrate this value from over the length of 0 to L. So, hence if we integrate this delta dx over the length of 0 to L, so hence p e will be come out, hence the total elongation is equal to pi delta L equal to 4 p L upon pi e d1 d2, 4 p L pi d1 d2. Okay, hence this is one of the most important formula. This is the one most important. Hence the total elongation of this particular section, delta L is said to be 4 p L upon pi e d1 d2. If we compare this formula using this formula P L upon AE of a prismatic cross section subjected to an axial load of P, this is the elongation of prismatic section. This is the elongation of prismatic section when subjected to axial load. Prismatic section, axial load, okay, prismatic section. But the below formula is of the tapered section, of a tapered section having d1 as a diameter at one end and d2 diameter at other end. Hence the delta L is 4 p L pi e d1 d2. Okay. So suppose our prismatic section is made up of a circular cross section, So if our section is made up of a circular cross section, then area we will calculate the area. Area is pi by 4 of d square, or we can say pi by 4 of d of capital D square, for instance, if the diameter of rod is capital D. Okay, pi by 4 of capital D square. Okay, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ये टैपर्ड सेक्शन को हम लोग एक प्रिज्मेटिक सेक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा होगा. ठीक है, तो पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर. ओके, तो कंपेयर दिस फॉर्मूला. तो दिस विल बिकम 4 पी एल पाई डी स्क्वायर अपॉन ई. नाउ कंपेयर दिस टू फॉर्मूला. हेंस द पावर of this formula is same because 4 pl both resemble the same. It means numerator is same. Now come to denominator. Pi is same and e is same. But here d1 d2 it is the product of two diameter at other end. Both the diameter at other end, it is the product of both the diameter at other end. But for prismatic section it is the square of single diameter, as diameter is not varying. Okay, so for the process of calculating the formula is same, the power of formula is same, but only different is that here we are using two diameter that we are provided, or in above equation for a prismatic section we are providing the total net diameter of a section, of a prismatic section. Okay. Now next topic is deformation in a bar due to its self weight. What is self weight? Every material is made up of have some density over it. Density means it carries some weight. What is density? Density is mass per unit volume. Density is, if you will density equal to mass per unit volume, and mass can be written as gamma into volume. So mass means its unit is kilo. Okay, its unit is kilogram. But if we multiply this kilogram with acceleration due to gravity like 9.21, then the value come out to be Newton, and Newton is a unit of force. Okay, so indirectly density also represent a kind of force acting on a body. Density in other terms or in indirect terms also referred to as the kind of force acting on a body. Okay, तो इस सेक्शन में हम लोगों के पास में एक सेक्शन है जिसकी एक प्रिज्मेटिक सेक्शन है जिसकी लेंथ L है, और इस सेक्शन की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, और वो उसे हम लोग ने एक एंड पे फिक्स कर रखा है, और कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि लोड नहीं लग रहा है तो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है. डिफॉर्मेशन हम इसके सेल्फ वेट से भी हो सकता है. सेल्फ वेट मतलब जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, जो भी मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल के सेल्फ वेट से भी, उस मटेरियल की डेंसिटी के कारण जो इसके ऊपर में इसके सरफेस पे जो लोड फील हो रहा होगा या वो एक्सप्रेस कर पा रहा होगा, उसकी वजह से भी डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है. तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो हम लोगों ने अपने कैलकुलेशन में या डेरिवेशन में माना वो है रो. रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल. हम लोगों ने एक स्ट्रिप किसमें से लिया है, जिस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, इस स्ट्रिप की थिकनेस है dy. ये जो थिकनेस है ये है dy, और हम लोगों ने इसे बॉटम से y डिस्टेंस पे लिया, बॉटम से y डिस्टेंस पे इस स्ट्रिप को कट किया है. ठीक है,
तो डेंसिटी कितना आएगी, इसकी वेट डेंसिटी कितनी होगी, तो वेट डेंसिटी हो जाएगी रो इंटू जी जो है वो वेट डेंसिटी हो जाएगा। वेट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, गामा से रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल वेट ऑफ बार मैंने अभी जस्ट बताया था, टोटल वेट ऑफ बार निकालने के लिए हमें वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो हमने गामा इंटू वी करके वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। अब अगर हमें डिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिप पूछेगा कि इस स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, अगर हमें हम लोगों से पूछा जाए कि इस स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो इस स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा। तो डिफ्लेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि पी एल अपॉन ई। डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो पी एल अपॉन ई है, मतलब लोड इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पी एल अपॉन ई, ये तो हमें पता है कि इस मटेरियल की क्रॉस सेक्शन ए है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ई है, ये हम लोगों को पता है। लेंथ, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, तो डी वाई स्ट्रिप हम लोगों ने कट किया। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखें, अगर हम लोग यहाँ देखें तो इस अगर डी डेल्टा ऑफ स्ट्रिप को लिखना चाहे, डी डेल्टा स्ट्रिप को लिखना चाहे, तो इसको हम लिख सकते हैं लोड इंटू लेंथ कितनी है, डी वाई है, लेंथ इसकी कितनी यहाँ कितनी है, डी वाई है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इंटू ई है। लेकिन अब बात आती है कि सर ये लोड कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो लोड जो है वो होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लोड, इस पर्टिकुलर सेक्शन का डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इस सेक्शन के बॉटम में ये पूरा का पूरा लोड है, ये पूरा का पूरा मटेरियल लगा हुआ है इस पर्टिकुलर। तो इस सेक्शन का जो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, ड्यू टू इस लोड की वजह से, इस मटेरियल का जो लोड हो रहा होगा वो चाह रहा होगा कि इसको हम पुल करके नीचे की ओर ले, इसी की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। इस जिस मटेरियल से बना हुआ है ये पूरा मटेरियल चाह रहा होगा कि इस रॉड को हम खींच के नीचे ले आए, पुल करके नीचे ले आए। तो इस मटेरियल की वॉल्यूम कितनी है, इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है कि वेट डेंसिटी इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम होता है। वेट डेंसिटी इक्वल टोटल वेट ऑफ बार जो होगा वो गामा इंटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम लोग ने गामा लिख लिया, ओके गामा। अब इस पूरे मटेरियल का टोटल वेट निकालने के लिए गामा इंटू वॉल्यूम करना है हमें, टोटल वेट निकालने के लिए हमें गामा इंटू वॉल्यूम करना है। गामा तो हम लोग ने यूज कर लिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो यहां से यहां तक का लेंथ वाई है। यानी कि ये क्या हो गया, ये आ गया टोटल वेट इस पूरे के पूरे, ये जो हैच सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन की वेट होगी गामा इंटू ए इंटू वाई, अब गामा को हम किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो गामा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी, रो इंटू जी। यानी कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, गामा को रिप्लेस करके हम लिख दे रहे हैं रो जी इंटू ए इंटू वाई। ठीक है, रो जी इंटू ए इंटू वाई। तो अब यहां देखा जाए, अगर हम लोग ये पूरा देखें, इस पार्ट पे आके देखें, इस पूरे पार्ट पे आके देखें, तो पी की जगह यानी कि वेट ऑफ बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो जी ए इंटू वाई अपॉन एरिया, तो ये रहेगा एरिया इंटू ई, और यहाँ पे डी वाई रहेगा लेंथ। ठीक है, अब देखिए ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, रो जी और ई ये क्या है, एक कांस्टेंट है, रो जी और ई जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, रो जी और ई रो जी एंड ई जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर डी डेल्टा स्ट्रिप निकालना हो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो जी अपॉन ई इंटू वाई इंटू डी वाई। तो अगर आप ये तो इस डेल्टा का स्ट्रिप है, अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्शन का अगर सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा होगा या एलोंगेशन हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे टर्म को 0 to L इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रिप हमने निकाल लिया, यह कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो 0 to L, y कहाँ से कहाँ वेरी हो सकता है, y इक्वल टू 0 हो सकता है और y इक्वल टू L हो सकता है, वेरिएशन तो ये है y इक्वल टू 0। यानी कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जब हम 0 to L इंटीग्रेट करें, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to L और इंटीग्रेशन 0 to L, जब हम इस पूरे इक्वेशन को 0 to L इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके जो हम लोगों के पास में जो इक्वेशन बन के आएगा, जब पूरा का पूरा इक्वेशन बन के आएगा, तो रो इंटू जी, तो गामा निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगा, तो गामा इंटू ई, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई टू, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये 0 to L तक इंटीग्रेशन हो रहा है, 0 to L तक इंटीग्रेशन हो रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन ई,
यानी कि अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन को लिखा है तो टोटल डेल्टा नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा नेट इक्वल टू हो जाएगा वाई, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही, लोअर लिमिट जीरो ही रहेगा, अपर लिमिट में गामा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2ई, गामा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2ई, यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल नेट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट गामा के टर्म में। गामा के टर्म में अगर हमें इस गामा को अगर हमें वेट के टर्म में निकालना हो, अगर गामा को हमें वेट के टर्म में निकालना हो तो गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, गामा इंटू वॉल्यूम करते हैं, गामा इंटू वॉल्यूम करते हैं तो हमें क्या निकलता है, हमें वेट पता चलता है। अगर इस गामा को डब्लू अपॉन वी कर दे या डब्लू इंटू ए इंटू एल कर दे तो हमें निकल जाए, हमारे पास में क्या निकल जाएगा, वेट के टर्म में निकल जाएगा। वेट के टर्म में कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि अभी हम लोग ने देखा कि डेल्टा इक्वल टू निकला गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई, और हमें पता है कि W इक्वल टू होता है गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ, बेसिकली एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ जो है वो टोटल वेट निकल रहा है। तो अगर हम गामा को W के टर्म में लिखना चाहे तो गामा इक्वल टू लिख सकते हैं W इंटू ए इंटू एल। इस इक्वेशन को हम जब यहाँ पुट करते हैं, हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो गामा अपॉन एरिया इंटू लेंथ इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2ई, यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेट डिफ्लेक्शन इन द टर्म्स ऑफ WL अपॉन 2AE, WL अपॉन 2AE, जो कि हमारा आ रहा है वेट के टर्म में, यानी कि टोटल वेट के टर्म में, बॉडी के वेट के टर्म में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर यूनिट वेट के टर्म में लिखना हो, यानी कि गामा के टर्म में लिखना हो, तो इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, ये डिफॉर्मेशन इन ए बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ ए कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अभी कहते हैं कि रेक्टेंगुलर बार का डिफॉर्मेशन था, अब हम लोग बात करेंगे कोनिकल बार का। हम लोगों के पास में कोनिकल बार है, सेम कंडीशन है, टॉप से इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी लेंथ कितनी है वो L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, टॉप से रिजिड फिक्स्ड है, कंप्लीटली फिक्स किया हुआ है, लेंथ है, और इसकी मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, मटेरियल की डेंसिटी रो दिया हुआ है। सेम प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, क्या प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, कि हम एक स्ट्रिप कट करेंगे एट अ वाई डिस्टेंस। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ हो जाएगी dy। तो हमें पता है किसी भी बॉडी का अगर डिफॉर्मेशन निकालना हो तो डेल्टा इक्वल टू होता है PL अपॉन ए। किसी भी बॉडी का डिफॉर्मेशन निकालना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, PL अपॉन ए होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे PL अपॉन ए करेंगे, PL अपॉन ई। हमें तो पता नहीं है कि इसके ऊपर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस ट्रायंगल की क्रॉस सेक्शन, कोन की क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्यों, क्योंकि ऊपर से तो डायमीटर चेंज हो जा रहा होगा, ऊपर में डायमीटर मान लो D था तो नीचे में डायमीटर चेंज हो जा रहा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अब एनालिसिस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। तो डिफ्लेक्शन हमें पता है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या निकलेगा, PX dy अपॉन AYE, PX dy अपॉन AYE। PX जो है वो लोड बता रहा है, dy उस मटेरियल की जो लेंथ है, उस सेक्शन की जो लेंथ है उसकी लेंथ हम लोग ले रहे हैं। AY क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उस कोन का, वो है E क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मटेरियल की जो वेट है जो इसके बिलो है, कहाँ किसकी वेट की बात, देखो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन इस पर लोड कौन लगा रहा होगा, तो इसके नीचे जितना भी मटेरियल इस पूरे की पूरी इस बॉडी में इनक्लोज्ड है, ये सब मिलके इस पर लोड लगा रहे होंगे, हर एक मटेरियल मिलके लोड लगा रहा होगा, तो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा। मतलब हम अगर डिफॉर्मेशन देखना हो तो इस मटेरियल की वजह से डिफॉर्मेशन देखेंगे, जो इसके नीचे उस सेक्शन के नीचे में है, तो कितना मटेरियल है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि इस पूरे के पूरे सेक्शन की जो वॉल्यूम होगी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। अगर रो इंटू जी कर देते हैं तो हमें यूनिट वेट निकल जाता है, जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेट को गामा से, और इसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट निकल जाता है। इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट निकल जाता है। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ करेंगे, गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ करेंगे, तब भी हम लोगों के पास में एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे गामा तो सेम रहेगा, तो गामा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं AY, और इसकी लेंथ कितनी है, इस मेंबर की लेंथ कितनी रहेगी, इस मेंबर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो Y है, तो हमें ये निकालना है। इस बेसिक कैलकुलेशन में हमें क्या सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, हम लोगों को जरूरत है इस AY की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, AY की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, कोनिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू AY इंटू वाई, इस AY की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो डेल्टा स्ट्रिप अगर हम लोग लिखें, तो डेल्टा स्ट्रिप इक्वल टू गामा इंटू 1/3। अगर डेल्टा स्ट्रिप लिखें तो देखते हैं हम लोग डेल्टा स्ट्रिप के बारे में।
डी डेल्टा स्ट्रिप अगर हम लोग कल लिखें इसमें, डी डेल्टा स्ट्रिप इक्वल टू निकलेगा P इंटू डी वाई अपॉन ए वाई इंटू ई। P इक्वल टू हम लोगों ने क्या दिखा था, P इक्वल टू दिखा था 1 इंटू गामा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ए वाई इंटू डी वाई अपॉन ए वाई इंटू ई, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए वाई से ए वाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर डी डेल्टा स्ट्रिप निकल रहा है तो डी डेल्टा स्ट्रिप की वैल्यू कितनी आ रही है, तो डी डेल्टा स्ट्रिप की वैल्यू आ रही है गामा इंटू 1/3 इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन ई। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक पर्टिकुलर इस स्ट्रिप का निकला, अगर हम इसे 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों के पास में फिर से क्या आ जाएगा, टोटल इलोंगेशन आ जाएगा। तो हमने 0 to L इसको इंटीग्रेट कर देना है। तब 0 to L इंटीग्रेट करेंगे तो गामा और ई जो है, गामा और 3 जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर अंदर क्या बचेगा, y इंटू डी वाई बचेगा। y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन फिर से लास्ट हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो y स्क्वायर होता है। तो y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर, तो टोटल जो नेट फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है डेल्टा टोटल, यानी कि पूरे के पूरा इलोंगेशन होता है 1/6e इंटू गामा इंटू एल स्क्वायर, 1/6e इंटू गामा इंटू एल स्क्वायर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हम लोग के पास में एक वर्टिकल टैपर्ड रोड है जिसकी जो वेरिएशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है फ्रॉम डायमीटर, टॉप एंड पे 65 mm है, बॉटम एंड पे 35 mm है और अपर में ये फिक्स्ड किया हुआ है और इसके ऊपर में एक्सियल लोड लग रहा है जो कि 25 किलो न्यूटन का है। टोटल लेंथ ऑफ सेक्शन जो है वो 2.5 मीटर है। हमें टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है, टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है। ठीक है, यानी कि अगर डायमीटर्स, अगर इसकी अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम लोगों के पास में कुछ ये रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये हम लोगों के पास में इस तरीके से बार है और इसकी जो डायमीटर वेरी हो रही है कुछ इस तरीके से वेरी हो रही है, ये वेरी है यहाँ पे। ऊपर में डायमीटर कितना है, ऊपर में डायमीटर जो है वो ऊपर में डायमीटर है 65 mm का, ये डायमीटर जो है ये है 65 mm का, ये डायमीटर 65 mm का। बॉटम में जो डायमीटर है ये है 35 mm की, ये डायमीटर जो है ये 35 mm की है, 35 mm की है। यहाँ पे एक एक्सियल लोड लगा हुआ है, इस एक्सियल लोड की इंटेंसिटी कितनी है 25 किलो न्यूटन है, इस एक्सियल लोड की इंटेंसिटी 25 किलो न्यूटन है और इस पूरे मटेरियल की जो, इस पूरे सेक्शन की जो लेंथ है ये 2.5 मीटर है। और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ई इक्वल टू दिया हुआ है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें इसमें निकालना है कि टोटल इलोंगेशन कितना होगा, हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल इलोंगेशन कितना होगा। ओके, टोटल इलोंगेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, डेल्टा इक्वल टू होता है 4PL पाई ई D1 D2। ठीक है, लोड कितना 25 किलो न्यूटन, लेंथ कितनी है 2.5 मीटर है, ई की वैल्यू 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, D1 D2 की वैल्यू जो है वो 65 mm है, 35 mm है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 4P, P की वैल्यू कितनी है 25 किलो न्यूटन है, तो हम लोग किलो न्यूटन यूनिट सेम रखेंगे, 25 किलो न्यूटन है तो यूनिट सेम रखेंगे, 25 इंटू लेंथ कितनी है 2.5 मीटर सेम रखेंगे, अपॉन पाई, ई की वैल्यू कितनी है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और इसकी वैल्यू हो जाएगी 210 इंटू 10 टू द पावर 6, यह होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद 65 mm है, 35 mm है, 65 mm को भी मीटर में चेंज करेंगे और 35 mm को भी मीटर में चेंज करेंगे और इसकी वैल्यू निकल के आती है D1 65 mm, यानी कि ये निकल के आएगा 0.065 एंड दूसरी क्या निकल के आएगी 0.035। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे कि टोटल एलोंगेशन इस पर्टिकुलर मेंबर में कितना हो रहा है। ओके, 0.065 इंटू 0.035, तो टोटल इलोंगेशन आ रहा है, ये आ रहा है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, यानी कि अगर इसको mm में लिखना चाहिए तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -2 mm। टोटल इलोंगेशन हो रहा है ड्यू टू इस पर्टिकुलर सेक्शन का, ड्यू टू ये इस लोड की वजह से 25 किलो न्यूटन की लोड की वजह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास में एक बीम है, इस बीम को पोजीशन पे हेल्ड रखने के लिए 3 वर्टिकल वायर्स से इसको स्ट्रेस किया गया हुआ, सपोर्ट किया गया है, जिसमें से जो एक बार है
2 बार है वो आउटर एंड पे लगे हुए हैं और 1 बार मिडिल में लगा हुआ है। जो 2 आउटर वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स जो है वो ब्रास के बने हुए हैं और जो सेंटर का वायर है वो स्टील का है। और हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एस्टिमेट द स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर, मतलब इस पूरे के पूरे वायर में स्ट्रेस कितना आएगा। तो पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हम लोगों के पास में एक बीम है, ये बीम कुछ इस तरीके से, ये बीम है। इस बीम की जो वेट है वो है 450 न्यूटन की, यानी कि इस बीम की वेट कितनी है, ये 450 न्यूटन की वेट है, 450 न्यूटन की। और इस बीम पे इस बीम को सपोर्ट किससे किया गया, इस बीम को सपोर्ट किया गया 3 वायर से। बाहर के जो दोनों वायर्स हैं, आउटर एंड पे जो दोनों वायर्स हैं, ये दोनों वायर किसके बने हुए हैं, ये दोनों ब्रास के बने हुए हैं। और बीच वाला जो वायर है, ये वायर जो है ये स्टील का है, ये वायर जो है। और ये तीनों वायर ऊपर में की तरफ फिक्स्ड किए हुए हैं। ये जो बाहर वाला वायर है ये ब्रास का है और ये अंदर वाला जो वायर है ये स्टील का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास में वायर की डायमीटर दी रखी है। ब्रास वाले वायर की डायमीटर कितनी है, इसकी डायमीटर है 1.25 mm की और स्टील वायर की डायमीटर है 0.625 mm की, 0.625 mm की। हम लोगों से पूछा गया कि आप हम लोगों को इस वायर में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो इस टाइप के इक्वेशन के लिए हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की बात करेंगे। कैसा इक्वेशन होगा, सबसे पहले ये जो टोटल लोड आ रहा है 450 न्यूटन का, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहे होंगे ये तीनों वायर मिलके। यानी कि इस लोड को लिख सकते हैं 2 PB मतलब ये फोर्स लिख रहे हैं PB, PS स्टील में, जो स्टील वायर में जो आ रहा होगा, PB जो है फिर से ब्रास में, तो 2 PB प्लस PS इक्वल टू लिखेंगे 450 न्यूटन। ओके, 2 PB प्लस PS इक्वल टू 450 न्यूटन। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये एक तो ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन की हम लोग हेल्प लेंगे। दूसरा इक्वेशन देखेंगे कि जितना इलोंगेशन स्टील बार में होगा उतना ही इलोंगेशन जो होगा वो किस में होगा, ब्रास में होगा। क्यों, क्योंकि एक ही पोजीशन पे है, मतलब हॉरिजॉन्टली ही पोजीशन पे है। ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बीम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट, मतलब जितना ब्रास वायर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा उतना ही ये वायर। यानी कि यहाँ एक और इक्वेशन बन सकता है एप्सिलॉन बी, यानी कि स्ट्रेन इन बी इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। यानी कि इसको अगर लिखा जाए, स्ट्रेन को लिखा जाए तो स्ट्रेन इक्वल टू लिखा जा सकता है सिग्मा बी अपॉन ई बी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ई एस। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू ई बी, सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू ई बी। और सिग्मा ई बी की वैल्यू यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन 210 इंटू 86। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आ रहा होगा 86 0.409, इट मीन्स सिग्मा बी इक्वल टू 0.409 टाइम्स ऑफ सिग्मा एस। ओके, तो हम लोगों के पास में दूसरा इक्वेशन क्या बन के आ रहा होगा, दूसरा इक्वेशन ये बन के आ रहा होगा सिग्मा बी इक्वल टू 0.409 टाइम्स ऑफ सिग्मा एस। ठीक है, तो जो पहला ये दूसरा इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, ये हम लोगों को पता होता है। तो अगर हम फोर्स को सिग्मा के टर्म में लिखना चाहे तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन वन को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 इंटू सिग्मा बी, यानी कि स्ट्रेस इन ब्रास वायर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रास वायर, प्लस पी एस को लिख सकते हैं सिग्मा एस स्ट्रेस इन स्टील वायर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील वायर इक्वल टू 450 न्यूटन। एक तो हम लोगों के पास में ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों के पास में पहले से है सिग्मा बी इक्वल टू 4.0409 सिग्मा एस। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हमारे इस बार में इसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू दिस लोड। ओके, थैंक यू।